इस बच्ची ने हवाओं में उड़ने का ख्वाब देखा। ये ख्वाब इतना पुख्ता और इसके हसूल की लगन इतनी शदीद थी कि अम्मा बाबा ने भी माशरे के तमाम उसूलों को रद्द करते हुए इस ताबीर के हुसूल की भरपूर हिमायत की। VCS off, all switches off, all rheostats anti-clockwise. My mother is sometimes concerned that it's a male-oriented society and the job I am doing is very different, very extraordinary. So her concern is there and I respect her concern. But she also stands by with my decision and like she is happy for me. 24 सितंबर 2014 की सुबह मरियम की जिंदगी में एक बहुत अहम दिन था। परेड स्क्वायर में अपने जैसे बहुत से ऑफिसर्स के साथ वतन अजीज के दिफा में अपनी जान को दरपेश खतरात से नाबरदस्मा करने का हल्फ लेते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो खुश थी कि उसने अपने ख्वाबों की ताबीर के हुसूल के लिए पहली सीढ़ी अबूर कर ली थी और यूं आंखों में नए ख्वाब सजाए मरियम मुख्तियार फाइटर कन्वर्जन यूनिट में पहुंची। फाइटर कन्वर्जन की तरबियत के दौरान भी मरियम ने अपनी पेशावराना महारत का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्द अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। Step brief duration is to be 2 to 3 minutes and would be conducted by formation leaders, captain in the following sequence. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे इस बात का यकीन होता गया उसकी मेहनतों से और उसकी रूटीन देखते हुए और उसकी यकसुई डिटर्मिनेशन ये सब चीज़ें देखते हुए ये एहसास हुआ कि वो किसी भी तौर पर अपने जो साथी उसके मेल पायलट्स उनसे कम न थे। बहुत होनहार और बड़ी जज्बे वाली खातून थी और बड़ा शौक़ था उनको अपनी फ्लाइंग स्पेशली फाइटर फ्लाइंग को सीखने का। एमएम आलम से बहुत इम्प्रेस थी। वो कही थी कि एक ऐसा मोमेंट होता है आपका कि जब आपसे वो चीज़ें हो जाती हैं जो कि आप नॉर्मल अगर आप इंटेंशनली करना चाहो तो नहीं कर सकते। तो वही एमएम आलम के इस अचीवमेंट पे बड़ी हैरान होती थी कि कैसे अल्लाह ताला ने उनके हाथ से इतने बड़े काम करवा दिया। K-8 लड़ाका तरबियती जहाज पर अपनी फाइटर ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मरियम ने 20 ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट का रुख किया। अब वो एमएम आलम, सरफराज रफीकी और राशिद मिन्हास जैसे बेमिसाल हवाबाजों की सफ में शामिल होने जा रही थी। ऑपरेशनल कन्वर्जन ट्रेनिंग के दौरान मरियम की हिम्मत का एक और इम्तिहान था जिसे वो पूरी लगन के साथ मुकम्मल कर रही थी। अब इख्तिलाफ हुआ। मरियम को अपने इंस्ट्रक्टर स्क्वाड्रन लीडर साकिब अब्बासी के हमरा मामूल के फ्लाइंग मिशन पे जाना था। जब जाती थी फ्लैग से पहले मुझे कहती थी अच्छा मामा मेरी मैं फ्लाइंग है मैं जा रही हूँ, अगर आ गई तो आपको फ़ोन करूँगी और अगर मैं नहीं आई
تو آپ سمجھیں کہ میں شہید ہو گئی. Guardian 57 requesting start. Guardian 57 start approved for IF. Radar Guardian 57 starting up. East barrier tar barrier up کرنا ہے. بیٹی ہواؤں کے سفر کو نکلی. وہ نہیں جانتی تھی کہ فضاؤں کی تسخیر کا قدرت نے اسے یہ آخری موقع دیا ہے. حادثے کے روز جب ہم فلائی کر رہے تھے تو اس روز صبح ہم نے ڈیٹیل بریفنگ کی. مریم نے کچھ سوالات پوچھے اور میں نے اسے تفصیل تمام جوابات دیے تاکہ وہ سمجھ سکے اور اچھا فلائی کر سکے. اور مریم نے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ تمام چیزیں سمجھ چکی ہے اور اس نے اچھا فلائی کیا. اپنا تمام تر مشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جب ہم لوگ ریکوری کے لیے آئے تو ہم ٹاور کے ساتھ رابطے میں تھے. Radar Guardian 57 recovering back. Recon Guardian 57 will maintain 100 and set to service. 57 clear to maintain 100 and report to head whiskey maintaining 100. مشن مکمل کرنے کے بعد جہاز جو ہی واپسی کے لیے روانہ ہوا تو عین اسی لمحے اسے ایک سنگین ٹیکنیکل فالٹ کا سامنا کرنا پڑا. Guardian 57 speed seen reducing. 57 confirm all normal. 57 you are still orbiting left, still drifting left, speed reducing more. 57 how do you leave? Sir, 57 is abnormally drifting left and there is no glare now, sir. ہیلو موبل آپ کا 57 سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے؟ نیگیٹو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. لاسٹ نون ساؤتھ آف چشمہ. موبل کے ساتھ بالکل کانٹیکٹ نہیں ہے. ناگزیر وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکواڈرن لیڈر ثاقب عباسی اور فلائنگ آفیسر مریم مختار نے ایجیکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی طیارے کا رخ آبادی والے علاقوں سے دور کی جانب موڑ دیا تاکہ کریش کی صورت میں زمین پر موجود قیمتی انسانی جانوں اور املاک کو محفوظ رکھا جا سکے. Guardian 57 seems to be have ejected and the last known position was south of Chashma. ہم دونوں کی بھرپور کوشش تھی کہ جہاز کو کنٹرول کر سکیں اور اس قیمتی قومی اثاثے کو لینڈ کر سکیں، لیکن ایمرجنسی کی نوعیت کچھ اس طرح کی تھی کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جہاز اب لینڈ نہیں ہو سکے گا. ہم دونوں کے لیے ایجیکشن کرنا یعنی جہاز سے نکلنا ناگزیر ہو چکا تھا، لیکن سامنے ہمیں ایک آبادی نظر آ رہی تھی. سو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آبادی کو بچاتے ہوئے ایجیکٹ کریں گے. جیسے ہی ہم نے آبادی کو کلیئر کیا میں نے مریم کو کال دی ایجیکٹ. کال وہ جو مجھے فلائٹ لیفٹیننٹ کیسر نے کی، کیسر نے مجھے کہا کہ انکل مریم از نو مور ود اس ناؤ. بلند حوصلوں کی حامل وطن عزیز کی اس بیٹی نے ایجیکشن کے دوران جام شہادت نوش کیا اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا. ننھے ننھے قدموں سے شروع ہو کر فائٹر پائلٹ بننے تک
मरियम का ये सफर और शहादत जैसे आला मर्तबे पे फायज होना पाकिस्तानी कौम के लिए हमेशा बायस फख्र और मशले राह साबित होता रहेगा। 23 मार्च 2016 को मरियम मुख्तियार की अजीम कुर्बानी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगाए बसालत से नवाजा, जो कि न सिर्फ मरियम के घर वालों बल्कि पूरी कौम के लिए बायस फख्र है। मैं अब भी आसमानों की तरफ कभी नजर करता हूं और कोई एयरफोर्स का जहाज गुजरता है तो मैं सोचता हूं कि इसमें मरियम है। मैं चाहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्री लोग अपनी बच्चियों को भी दिखाएं ताकि इनकी जिंदगी के बारे में इससे इंस्पायर होकर, इससे एक सबक सीखकर बच्चियां चाहें तो आए चाहें तो ना आए, ये शर्त नहीं है कोई, लेकिन कम से कम इंसानियत के आला तरीन उसूल जो होते हैं उनसे वाकफियत तो उनको होनी चाहिए। हमें हमेशा फख्र रहेगा अपनी इस बेटी पे जिसने पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम बुलंद किया। हम उनके जज्बे को सराहते हैं, हम उनकी फैमिली को ओन करते हैं। हमेशा के लिए 28 पर रिस्पॉन्ड फ्लाइंग मरियम की फैमिली बन के रहेंगे इंशाल्लाह। मैं इस बात को मैं बहुत फख्र से कहता हूँ कि हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ और उसका कोर्समेट हूँ और उसने हमारे साथ वक्त गुजारा है। Want to stop worrying and start living, remember, count your blessings, not your troubles, and always be thankful to Allah Almighty.